Good morning, everyone. Welcome to my channel. In today's lecture, I'm going to solve some questions related to the topic echelon form, reduced echelon form, rank, and nullity of a matrix. I call this exercise number 3. Our first question is reduce the following matrices into echelon form, reduced echelon form, also find the rank and nullity of the matrices. Okay, here are three parts of that question. Part A, in part A, we have given the matrix A. In part B, we have given the matrix B, and in part C, we have given the matrix C. And here, if you can see that the matrix A is of order 3 cross 4 because it has 3 rows and 4 columns. So first we write here the number of rows and then the number of columns. And the matrix B is of order 1, 2, 3, 4, 4 rows and 4 columns. It is a square matrix, and matrix C is of order 1, 2, 3, 4. It has 4 rows and 2 columns. Okay, let's start our solution with the first part, A part. Okay, students, first of all, we find the echelon form of the given matrix. Okay, what we need to do here, first of all, we need, if I consider a square matrix, okay, if I ignore that column, okay, and then this matrix, this is a square matrix, this is a 3 cross 3 matrix. What I need to do is to make that square matrix an upper triangular matrix. First of all, if I consider this matrix, this is the diagonal of the matrix square matrix, and I just need to do that to make the entries 0 below the diagonal. So I need to do that entry and that entry to make these two entries 0, and in the next step I need to make that entry 0. If this is the diagonal, then these entries should be 0 for an echelon form. See, if this is the diagonal of this square matrix, if I'm talking about only this matrix, then this is the diagonal of this matrix. Okay, let's start with that trick, and then we see that what kind of form our matrix take. Okay, our first entry is 1, and what operation I'm going to do here. Of course, for an echelon form, we can call it an echelon form or a row echelon form, and we always do row operations, elementary row operations, to get our echelon form of a matrix. So first of all, I need to make these two entries 0, and for that I do an operation on row 2. Row 2, if I do the operation R2 minus 2R1, make that element equal to 0, and if I subtract 3 times R1 from row 3, we need to subtract the scalar multiple of the row 1, which has the first pivot, from the row 2 and row 3. Okay, row 1 is remains same, 1 minus 2, 3 minus 1, and the operation on row 2 is this, R2 minus 2 R1. Okay, I'm going to write the operation R2, which is 2, the first element of R2 is 2, minus 2 times the corresponding element of row 1, which is 1 here. So first element is 2 minus 2 is 0. Here I get the element 0. Next, for the next element, R2's element is minus 1, minus 2 times the corresponding element of row 1, which is minus 2 here. So minus 1 minus plus 4 equals to 3. So this element becomes 3, and similarly we do that operation on the whole row 2. Next element is 3 of row 2 minus
2 times the corresponding element of row 1, which is 3. This is 3 minus 6 is minus 3. Uh, and that entry is minus 3. And similarly for the last entry, this 2, R2 is 2 minus 2 times R1, the corresponding entry of row 1 is minus 1, and 2 minus minus plus 2 is 4. Similarly, we do that operation on row 3, R3 minus 3 R1. Our row 3 becomes 0, 7, minus 7 and 6. Okay students, now we get these two entries 0, and now what we need here, we need to make that entry 0. हम अपने इस पिवट को यूज़ करेंगे इसको 0 करने के लिए, क्योंकि अगर हम रो 1 को यूज़ करेंगे, इसके एलिमेंट को इसको यूज़ करेंगे रो 3 के इस एलिमेंट को 0 करने के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में व्हेन वी सॉल्व द एचेलन फॉर्म, दैट इफ़ वी यूज़ दिस रो टू मेक दैट एलिमेंट 0, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो हो जाएगी। तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं टू मेक अवर मैट्रिक्स, डोंट मेक अवर मैट्रिक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने पिवट के जो है पिवट को यूज़ करते हुए हम उसकी निचली रो को 0 करें। तो हम अगर यहाँ पे आप देखिए, आप 3 को यूज़ करते हुए हमने 7 को 0 करना है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी फ्रैक्शन के साथ और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच से जाते हैं। अगर मैं इस रो को डिवाइड कर दूँ 3 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जब मेरे पास पिवट 1 होता है तो नीचे की एंट्री को 0 करना इट बिकम वेरी ईजी टू मेक दैट एलिमेंट 0 व्हेन दैट पिवट बिकम्स 1. What is the pivot? Pivot is the first non-zero element of any row. So in that row this is the pivot, in that row this is the pivot. तो इसको यूज़ करते हुए जब हमने इसको 0 करना है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास बिल्कुल ऑपरेशन हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और फिर हम इसमें से इसको 0 इजीली कर सकते हैं इसको यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि ये टर्म जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगी, 4/3 हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारा चांसेस हैं कि मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो उससे हम अवॉइड करते हैं। आंसर तो मे भी ठीक आ जाए, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में एरर होने का खतरा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़े सिंपलर स्टेप्स की तरफ जाएं कि अपनी फ्रैक्शन, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म कम से कम आए। तो अभी यहाँ पे आप देखें, अगर मैं रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 2 times row 2, if I subtract 2 times row 2 from row 3, then I get this entry equals to 1, and after that I interchange these two rows. करके देखते हैं what operation I'm going to do here. I'm going to R3 minus 2 times R2. First two rows same रहेंगी, and R3 minus R2 operation करके I get 0, 1, -1 and -2. अब इस ऑपरेशन से मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ पे ये टर्म 1 आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, रो ऑपरेशन, आई कैन इंटरचेंज दीज टू रोज, R2 और 3 को इंटरचेंज कर दूंगी, 0, 1, -1, 2, रो 3 रो 2 की जगह आ जाएगी, 0, 1, -1, -2, एंड रो 3, sorry, रो 2 becomes रो 3 and 4. Now I get the pivot 1 of the second row, and usually it's not a necessary condition for an echelon form to make the pivot values equals to 1.
but we prefer it to make the pivot values equals to 1 because the next operation become easier for us. Like now I can easily make that element 0 using the above pivot. Okay, I'm going to do an operation on row 3 to make that element 0. What I'm going to do here, I am going to subtract r3 minus 3 times r2. इसमें से हम r3 में से माइनस करूँगी 3 टाइम्स r2, then I get that element 0. 0 minus 0 minus 3 times 0 is 0. Then r3 is 3. 3 minus 3 times 1 is 0. Then r3 is minus 3 minus 3 into minus 1. It becomes equals to minus 6 and 10. This is the Ashton form of the given matrix. Because we make the upper triangular matrix of this, if you consider this matrix. So this is an upper triangular matrix, and it fills all the conditions of a matrix in Ashton form. फर्स्ट कंडीशन आपकी एशलन फॉर्म की कि अगर कोई भी ज़ीरो रोज़ हैं हमारे पास तो वो आपके पास लास्ट में होने चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स के लास्ट में ज़ीरो रोज़ हों. और द सेकंड कंडीशन इज़ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर द पिवट जो है आपके पास ज़्यादा होने चाहिए हर अगली रो में, यानी कि हर नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ शुड बी ग्रेटर इन नंबर बिफोर द पिवट. तो यहाँ पे हमारे पास इस रो में पिवट से पहले 1 0 है, नेक्स्ट पिवट से पहले 2 ज़ीरोज़ हैं. तो हमारे पास सब कंडीशन एशलन फॉर्म की सेटिस्फाई होती हैं. सो दिस इज द एशलन फॉर्म. Now let's reduce this form into the reduced echelon form. Reduced echelon form के लिए what we do, that if we don't have a square matrix, right, in that case we have a matrix of order 3 cross 4. So if we consider this part, where the matrix is, it's a square matrix, then what we do, we need to make that square matrix, we need to convert it into the identity matrix. Now what we need to do here is that we need to make that entry 0, and we need to make these two entries 0, and make this entry equals to 1. So first of all, I need to make the diagonal elements equals to 1 to convert it into the reduced echelon form. Now let's see. For the reduced echelon form, first of all, I need to make that entry equals to 1, because for the reduced echelon form, our pivot is always equals to 1. So in that case, the pivot for row 1, the pivot is 1, for row 2, the pivot is 1, and for row 3, I need to make the pivot equals to 1. So what I need to do here is, I need to multiply the row 3 with the scalar minus 1 by 6. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि आप जो है ये तो फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी, फिर ये तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर हम इस रो में हम ऐड करें कुछ स्केलर मल्टीपल ऑफ रो 2 या रो 3, तो पॉसिबिलिटी है कि ये टर्म हमारे पास 1 आ जाए. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे हमें जो बिफोर पिवट से पहले जो एलिमेंट्स है वो 0 हैं, तो अगर मैं इसमें ऐड करूँगी रो 2 के कोई एलिमेंट्स या रो 1 के कोई, तो ये मेरे पास नंबर these becomes non-zero. We don't need this. So the only option which is left here is that I am going to divide this number from the term minus 6. So let's see, our first two rows becomes same. 1 minus 2, 3 minus 1, 0 1 minus 1 minus 2, and I'm going to divide row 3 with the number minus
नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब ये मेरे पास 1 आ गया है तो मुझे नेक्स्ट ये एंट्री 0 बनानी है। उसके लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा मेरे पास, आई एम गोइंग टू राइट द ऑपरेशन फर्स्ट। इफ आई add 2 times row 2 into row 1, यहाँ पे आप देखिए कि रो 1 में जब मैं -2 में ऐड करूँगी 2 टाइम्स 1 तो -2 + 2 इज़ 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ओके, द आंसर इज 1 0 3 -5, और रो 2 एंड रो 3 remains same, 0 1 -1 -2 and 0 0 1 and -10/6. I need to make these two entries 0, and for that, now to make these two entries 0, I use this entry, and what I'm going to do here, I'm going to R1 minus 3 times R3, R1 की एंट्री 0 करूँगी यूजिंग R3, और R2 की एंट्री 0 करूँगी R2 में। जस्ट मैं R2 में अगर मैं ऐड कर दूँ R3, then I get this term equals to 0. So R1 minus R3 करेंगे तो I get the result 1 0 0 and 0, and R2 में जब ऐड करूँगी R3 तो I get the answer 0 1 0 and -11/3, and R3 remains same 0 0 1 and -10/6। 2 3 एंट्रीज का यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस एंट्री को लूँ, इस एंट्री ये रो 1 पे ऑपरेशन हो रहा है, ये एंट्री मेरे पास क्या थी -5, और मैंने इसमें से माइनस किया है 3 टाइम्स R3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री विच इज़ -10/6। सो फॉर दैट एंट्री आप करें -5 माइनस +30/6, and if you take the LCM 6 minus 30 plus 30, which is equals to 0, so I get this entry equals to 0। और इसी तरह से एक और एंट्री की मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंट्री को लेती हूँ R2 की, इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। R2 की एंट्री है मेरे पास -2, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ R3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री विच इज़ -10/6। तो इसका मैं एलसीएम लूँगी तो 6, and this becomes -12 -10, which is equals to -22/6, which is equals to डिवाइड करें इसको 2 से तो -11/3, and here is that entry। So this is our reduced echelon form of the given matrix। यहाँ पे देखिए कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है, अगर आप इफ यू कंसिडर ओनली द स्क्वायर मैट्रिक्स पार्ट, तो उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया है। और ये तो था शॉर्ट ट्रिक, और अगर आप देखें तो ये आपका मैट्रिक्स फुलफिल करता है रिड्यूस echelon फॉर्म की ऑल द कंडीशंस को, कि इसमें अगर कोई ज़ीरो रो होगी तो वो सबसे एंड पे होगी मैट्रिक्स पे, बट इन दैट केस वी डोंट हैव एनी ज़ीरो रो। और जो हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आपका पिवट होगा, एवरी पिवट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पिवट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ एवरी रो। यहाँ पे इस रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है 1, दिस पिवट इज 1। पे इस रो की नॉन ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है 1, और फिर इस रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री पिवट है इक्वल्स टू 1। और फिर वापस एक जो लास्ट कंडीशन थी रिड्यूस echelon फॉर्म की, वो ये थी कि पिवट जो है, पिवट जिस कॉलम में होगा उस कॉलम की बाकी सब एंट्रीज 0 होंगी। तो आप देखें इस पिवट में, इस कॉलम में बाकी एंट्रीज 0 हैं, इस पिवट के लिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी एंट्रीज 0 हैं, और इस पिवट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है उसकी बाकी एंट्रीज 0 हैं। सो दिस इज द रिड्यूस फॉर्म
और रिड्यूस एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक के लिए हम अपने गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में पहले रिड्यूस करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। सो हियर in reduced echelon form, the number of non-zero rows कितनी नॉन जीरो रोज है? दिस इज नॉन जीरो रोज 1 2 3, ऑल द 3 रोज आर नॉन जीरो। तो हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द नंबर ऑफ पिवट इन अ मैट्रिक्स जो है आफ्टर कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म, आपके पास नंबर ऑफ पिवट्स जो हैं वो भी आपके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होंगे। इन दैट केस नंबर ऑफ पिवट्स है हमारे पास 1। अगर हमारे पास किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स जीरो हों, देन वी कॉल दैट रो एज अ जीरो रो। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। आपके पास नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ नलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अब जो हम आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फाइंड करेंगे नलिटी, उसका थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर है और डिफरेंट अप्रोच है। सो फॉर अ मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल होता है आपके पास उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो इन दैट केस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके पास? 1 2 3 4। यू हैव 4 नंबर ऑफ कॉलम्स और रैंक आपके पास क्या आया मैट्रिक्स का? 3। सो द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बता दूँ कि जब हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए मैं अगर अपने मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में भी रिड्यूस करती हूँ या फिर रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में करती हूँ, दोनों केसेस में मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होंगे। In reduced echelon form or echelon form, the number of non-zero rows are 3, so the rank of the given matrix is 3. Let's move towards the second part. The matrix B is of order 4 cross 4. First, I need to convert it into the echelon form. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे echelon form के लिए? now it's a square matrix, तो हमें अपने जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अपने पर्टिकुलरली स्क्वायर मैट्रिक्स को टारगेट करके उसको मैंने डायगोनल एंट्रीज से नीचे की एंट्रीज को ज़ीरो किया था। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है विच इज़ पिवट, we need to make the entries below this pivot equals to 0. I'm going to do the operation R3 minus 2R1 on the row 3. Row 3 पे क्या operation? Because row 2 का जो element है first element, this is already 0, so we don't need to do any operation on row 2. And for row 3 I need to do the operation R3 minus 2R1 when I subtract माइनस टू टाइम्स आर वन फ्रॉम आर थ्री, टू में से माइनस करूँगी टू टाइम्स आर वन, देन आई गेट दैट एंट्री ज़ीरो। आर थ्री माइनस टू आर वन, उससे मेरे पास ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। और रो थ्री के ऊपर क्या ऑपरेशन करूँगी? आर फोर माइनस फोर टाइम्स आर वन, आर वन फोर में से माइनस करूँगी फोर टाइम्स द पिवट, फोर टाइम्स वन, देन फोर माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये पूरा ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे रो थ्री पे। Row 1 or row 2 remains the same. 1 3 minus 1 2, 1 3 minus 1 2, 0 11 minus 5 3, 0 11 minus 5 3। 1 और 2 रोज सेम रहेंगी और रो 3 का मैं आपको किसी भी एक एलिमेंट का ऑपरेशन करके दिखाती हूँ। सॉरी, साइंस में यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने यहाँ पे अपने साइंस ट्रिक किए हैं। माइनस 11 प्लस 5 माइनस 3, माइनस 11 प्लस 5 है माइनस 3। एक ऑपरेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एलिमेंट को लूँ तो R3 यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है?
R3 का 3 minus 2 times the corresponding element of R1 which is minus 1. So 3 plus 2 equals to 5. So here we get the element 5. इसी तरह just take a random element of R4. Let's convert this element. R4 का मैं लेके आपको दिखाती हूँ calculations. R4 का मैंने element लिया 5. मैंने minus 4 किया the corresponding element of R1 which is 2. So 5 minus 8 equals to minus 3. So I get 3 here. इसी तरह से आप using the same formula we can get all these values are the changed values of row 3 and row 4. Okay, अब हमारे पास नेक्स्ट आप देखिए जो आपके पास एशलन फॉर्म है, एशलन फॉर्म के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है कि आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट मेरे पास इस रो का 1 है, सेकेंड नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया मेरे पास 11. सो here 11 is the pivot of the second row. मुझे इसके नीचे के टर्म्स को ज़ीरो करना है टू मेक द एशलन फॉर्म. तो आपको नज़र आ रहा है सिंपल यहाँ पे मैं अगर R3 में ऐड कर दूंगी R2, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और R4 में से R2 को ऐड करूंगी, R4 में -11 में ऐड करूंगी +11, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो यहाँ मैंने ऑपरेशन किया है R3 प्लस R2. R3 में जब ऐड करूंगी R2 तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो आएगी और जब मैं R4 में ऐड करूंगी R2 तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो देखते हैं R3 प्लस R2 किया तो मेरे पास ये पूरी रो 3 ज़ीरो हो गई और जब मैंने R4 में R2 ऐड किया तो ये पूरी रो मेरे पास ज़ीरो हो गई. अब दिस इज द required echelon form of the given matrix. Why? देखिए it fulfills all the conditions of a echelon of a matrix in echelon form. Why? Because there are two zero rows here and which are at the last of our matrix. ये हम नीचे हैं दोनों और जो नॉन ज़ीरो रोज है वो ऊपर हैं सबसे मैट्रिक्स के. ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई. सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पिवट से पहले के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हर लाइन में हर नेक्स्ट लाइन में ज़्यादा होंगे. तो इसमें पिवट से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, उससे नेक्स्ट लाइन में पिवट से पहले 1 ज़ीरो है हमारे पास और उससे नेक्स्ट लाइन्स में वी डोंट हैव एनी पिवट इन रो 3 and 4. So this is the echelon form of our given matrix. For the reduced echelon form, but the only thing is left is कि आपके पास जो फर्स्ट पिवट 1 है, सेकंड पिवट भी 1 होना चाहिए. फॉर रिड्यूस echelon फॉर्म मुझे इसको 1 करना है और सेकंड कंडीशन है कि मुझे जो पिवट के कॉलम में सब एलिमेंट्स उनको ज़ीरो करना है. तो मुझे एक तो यहाँ पे इस पिवट को 1 करना है और दूसरा इस पिवट में जो भी कॉलम इसके रिस्पेक्टेड जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसमें सब एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेशन किया, सबसे पहले मैंने रो 2 को डिवाइड कर दिया 11 के साथ टू मेक आवर सेकेंड पिवट इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे मैंने 1/11 रो 2 किया, रो 2 को 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास अपना सेकेंड पिवट जो है रो 2 का पिवट वो 1 आ गया. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी रेड्यूसेशन फॉर्म की. अब जो लास्ट रह गई है कि हमारे पिवट के सारे कॉलम के एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए. इसको ज़ीरो करने के लिए मैंने अपना ऑपरेशन किया है, मैंने यूज़ करना है ऑफ कोर्स अपने पिवट को टू मेक दैट टर्म ज़ीरो. उसके लिए मैंने ऑपरेशन किया है R1 माइनस 3 टाइम्स R2. इसमें से मैं माइनस करूँगी 3 टाइम्स R2 तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी. तो मेरे पास ये पूरा रो 1 चेंज हो जाएगी, रो 1 पूरे पे ये ऑपरेशन होगा. R1 माइनस 3 R2 करने के बाद मेरे पास ये रो आ जाएगी और रो 2 सेम रहेगी एंड रो 3 एंड रो 4 भी सेम रहेगी. एक एलिमेंट पे ऑपरेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टर्म को लेती हूँ, R1 की टर्म है -1 -3 टाइम्स और R2 की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है -5/11. तो हमारे पास ये टर्म आएगी विच इज इक्वल्स टू -1 माइनस प्लस 15/11 and this is equals to 11. -11 plus 15 is 4/11. Now this is our reduced echelon form of our given matrix. Rank of the matrix, number of non-zero rows हमारे पास कितनी है 1 and 2. So rank of the matrix is 2 और nullity का फॉर्मूला है, nullity of a matrix का फॉर्मूला है मेरे पास number of columns minus rank of a matrix.
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास इस मैट्रिक्स में? 1 2 3 4. 4 minus rank of the matrix is 2. 4 minus 2 is 2. So 2 is the nullity of this matrix. Sorry, we have the matrix B here, not A matrix. And similarly, I solved our third part. There is given matrix C, and I need to reduce it into the echelon form and the reduced echelon form. So first of all, row operation करेंगे. This matrix is row equivalent to this matrix by the operations. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट पिवट है उसकी एशलन फॉर्म में लाने के लिए उसके नीचे की मुझे एंट्रीज को ज़ीरो करना है. उसके लिए ऑफ कोर्स मैं अगेन अपने पिवट को यूज़ करूँगी, पिवट की रो को यूज़ करूँगी. तो इसके ये सेकंड तो मेरे पास एलिमेंट रो टू का इसका ज़ीरो हो गया, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट मेरे पास रो 3 के लिए इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स रो 1 फ्रॉम रो 3 आई गेट दैट element equals to 0. So R1 and R2 remain same. 1 3 0 minus 2, 1 3 0 minus 2. And for row 3, 5 minus 5 times 1 is 0. And for that element देखते हैं row 3 का -1 minus 5 times the corresponding element of row 1 is 3. And this is equals to -1 minus 15, which is equals to -16 here. See? And similarly, when I use the operation R4 plus 2 R1 under row 4, then I get the resultant row 0 and 9. अच्छा, अब मेरे पास फर्स्ट पिवट से पहले के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए. अब मुझे अपने सेकंड रो का पिवट जो है विच इज़ -2, मुझे एशलन फॉर्म में लाने के लिए सेकंड रो का दिस इज़ द पिवट, इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है. मुझे इसको यूज़ करते हुए -2 को यूज़ करते हुए इन दो को 0 करना है. अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी. इफ़ आई मेक दैट टर्म इक्वल्स टू 1 and then I can add or subtract its scalar multiple into these two rows to make these two entries 0. ये भी ऑप्शन है मेरे पास. एंड देयर इज अनदर ऑप्शन, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक और ऑप्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. आपने क्योंकि यहाँ पर इस रो में भी सिर्फ 0 एलिमेंट है, इसके अलावा इस रो में भी 0 एलिमेंट है इसके अलावा. अगर मैं डिवाइड कर दूंगी रो 2 को -2 से, रो 3 को -16 से और रो 3 को 9 से, तो मेरे पास बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी इस कॉलम की एंट्रीज आ जाएंगी. फर्स्ट रो 1 3 एज इट इज, सेकेंड रो को मैंने डिवाइड किया है -2 के साथ. -1/2 रो 2, ये टर्म 1 आ गई. नेक्स्ट R3 रो 3 -1/16 रो 3, ये टर्म 1 आ गई. और 1/9 R4, ये टर्म मेरे पास 1 आ गई. क्योंकि मेरे पास इससे पहले सिर्फ जीरोस थे और आगे भी कोई कॉलम्स नहीं थे, इसलिए मैंने सिंपली इनको डिवाइड कर दिया. आप चाहें तो ये टू ऑपरेशन स्किप भी कर सकते हैं और इसको 1 करने के बाद इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो एडिशन ऑपरेशन करके आप इनको उससे भी 0 कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ये पिवट आ गया रो 2 का, मुझे इसके नीचे की 2 एंट्रीज को 0 करना है. सिंपल है. अब मैंने क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर दिया 16 को, अब मैंने सिंपल जो है वो रो 3 में इसको 0 करने के लिए R3 माइनस R2 करूँगी तो ये 0 हो जाएगा. R4 माइनस R2 करूँगी तो ये 0 हो जाएगा. So I do the operation here R3 minus R2. This operation make that element 0, and R4 minus R2. This operation makes that element 0. Now this is the echelon form of the given matrix. क्यों? Because हमने हमारे पास जो 0 रोज हैं that are at the end of the matrix, जो सबसे लास्ट में है मैट्रिक्स के एंड पे या बिलो हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं पिवट से पहले वो नेक्स्ट लाइन में पिछली लाइन से ज़्यादा हैं. So now next we are going to
convert that echelon form into the reduced echelon form. रिड्यूस एशेलन फॉर्म के लिए मैंने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को, सिर्फ इस मैट्रिक्स को मैंने इसमें, इफ आई मेक दैट एलिमेंट 0, then this matrix is convert into the reduced echelon form, and I just need one operation which is r1 minus 3 r2. मैं अपने पिवट को यूज़ करते हुए इसके ऊपर के एलिमेंट को 0 करूँगी. सो यूजिंग द ऑपरेशन r1 minus 3 r2, ये टर्म सेम रहेगी, एंड 3 में से r1 विच इज़ 3 में से माइनस करूँगी 3 टाइम्स r2 विच इज़ 1, ये टर्म भी मेरे पास 0 आ जाएगी, एंड I get the reduced echelon form of my matrix. And for the rank of the matrix, number of non-zero rows equals to 2. Number of non-zero rows 2 है मेरे पास, और nullity के लिए, sorry, we have the matrix C. For the nullity of the matrix C equals to number of columns minus rank of the matrix C. So number of columns are 2 here, and rank of the matrix C is also 2. So 2 minus 2 is 0. 0 is the nullity of the given matrix C. So this is it for the today's lecture. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel, and share it with your friends. Take care.